Hello and very warm welcome to all of you. Greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just the appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. A fungal infection is quite common on our skin or nails. Fungal infections are diseases caused by fungus. Mild fungal infection can look like a rash, it can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Jatin Sidwal, live from Delhi, to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Jatin Sidwal is an MBBS, MD, dermatology, dermatologist, cosmetologist, and dermatosurgeon. He has 10 plus experience, overall experience in this field, 2 years as a specialist. He's currently practicing at Sidwal Skin Clinic. A very warm welcome to you, Dr. Jatin Sidwal. Good afternoon. Doctor, today we are going to talk about fungal infections, and they are quite common in this particular season. You know, it's hot, it's humid, we are experiencing monsoons, pre monsoon showers, etc. And of course, the cases of fungal infection are at a surge. To start with, Doctor, what are the body, areas where we mostly see fungal infections, which are prone to fungal infections? So the areas most commonly where fungal infections do happen are areas of maceration, basically the areas where we sweat more. So that will include your underarms, your groin areas, your buttocks areas, and female inframammary areas also involved. These are the common sites where it can be involved directly, causing different kind of infections. Other than this, fungus can also be a contributory cause to a lot of other places, like your dandruff in your scalp can be caused by a fungus. There's something called tinea capitis, again common in children, school-going children. So over there also you see in your scalp also these fungus can happen. It can actually affect almost entire body depending on the site. It can even affect your face, your beard, then your onychomycosis, which we call as the nail infection of fungus, and even your foot called tinea pedis. These are also areas where usually sweating does happen, and due to footwear or socks which might be infected with the fungi, there can be these superficial fungal infections called dermatophytosis. Right. So from top to toe, anywhere we can have fungal infection, and of course, it's more common in folds where moisture, sweat get accumulated and can lead to fungal infections. Doctor, we often say prevention is better than cure. Medical field में तो ये बोलते ही हैं. Any way we can prevent having fungal infections? Well, there are a lot of things that you can do. First and foremost is regular cleaning and having a proper hygiene is important. A lot of people actually don't take a shower every day, so that is the least that you can do. Along with that, as I told you, sweat is the main cause because of which these fungal hyphae tend to grow. So what you have to make sure is, even if you are a person that does, some people have hyperhidrosis, that they sweat more than a normal individual, Right. then get yourself treated for that. But other than that, also just having a simple antifungal dusting powder whenever you're going outside for work, for workout, when you know that the body is going to be closed now with your Mhm. clothes, so you have to make sure that you are using powder so that the sweat doesn't accumulate. Second thing, what you can do is make sure that you're not wearing very tight fitting clothes. You need to wear more of cotton fabric, linen. These are fabric that where the clothes can breathe, so the Right. sweat does not really accumulate inside the body. So these are a few things that you can do to prevent fungal infection. But if you do tend to have some kind of a fungal infection, then you have to suggest you have to go to a dermatologist as soon as possible. Other than Mm. this, the simple thing that you can keep in your mind is you can use an antifungal soap if you do are predisposed to such kind of infections. If you are suffering, because fungal infections also are related to the immunity of the person. In case you have diabetes or any other kind of immunocompromised diseases, you have to get yourself evaluated for that as well. So to prevent fungal infections in broad, these are the things that you can do. If you talk about the foot, then specifically you need to clean your undergarments, you need to clean your socks, bed sheet, pillow covers, all these areas. The fungal infection can come through these areas. If somebody else has a fungal infection in your family, make sure they're getting treated, because from one person to the another, it can easily be transmitted. We see these infections most commonly
If you see school going children, then children who are in hostels where there's a community staying in a small area, you give your clothes to laundry. From there, usually these fungal infections tend to come. Right. So taking good care of yourself, your hygiene, etc., is very important. But a very important point that you said, doctor, in case you have fungal infection, पहले तो preventive measures करो. अगर उसके बाद भी fungal infection होता है, then you need to go and see a good qualified dermatologist as soon as possible. But a very common scenario in our society is that we normally don't land up in front of a doctor as soon as we see a problem, especially with our skin. With skin, we are so lenient. We'll go for home remedies, we'll apply something, then we have these DIYs trending. Then a very easy common tendency is to go to the chemist shop. डॉक्टर के पास जाने से भी पहले हम chemist shop के पास दवाई लेने पहुंच जाते हैं. कोई एक टॉपिकल एप्लीकेशन मिल गया and we'll keep on applying it. And initially काफी effective भी लगता है, हमें लगता है ठीक हो गया डॉक्टर के पास गए बिना ही. So my question to you, doctor, is that do these home remedies, these DIYs, these over-the-counter medications, topical applications specifically, do they work? See, as you made a very good point. अगर मैं अपने प्रैक्टिस के बारे में बताऊं, जितने भी मेरे पास टीनिया या फंगल इन्फेक्शन के केसेस आते हैं, more than 90% are not coming to me for the first time. They are definitely doing some kind of a home remedy. They are going to a chemist. हर एक के घर में आज की डेट में इच गार्ड, रिंग गार्ड या ऐसी कोई ना कोई टाइप की क्रीम, देयर आर मिलियन क्रीम्स अवेलेबल, पैंडर्म, क्वाड्रीडर्म, ये सब पास रहता है. एंड दे थिंक दैट हर इन्फेक्शन के लिए इसको यूज किया जा सकता है. Now, what happens is कि इस cream के अंदर there are a lot of different components. There is an antifungal, yes, inside that also, but along with that, the most problematic thing that is there is a steroid that is there inside it. Antibiotic भी होता है, but steroid is the one जहाँ पे what you're saying is कि initial relief आपको मिल जाएगा. If you are applying those creams for the next 3 to 4 days, because inflammation या swelling को वो कम करेगा because of the nature of the steroid. उस वजह से sometimes symptomatic relief might be there, little bit of itching might be less. This can be happening. But the problem is then you end up with something called tinea incognito. So what we mean by that is जो normal आपका tinea होता है, jaw itch, athlete foot जिसको हम कहते हैं, उसके बजाय now the fungal infection that will come will present itself very different from what its normal morphology would have been in the first place. Even as dermatologists हमको भी confusion हो जाता है जब हम देखते हैं, because ज्यादातर cases आज की डेट में steroid modified tinea के ही आते हैं. So as for us also it becomes difficult. Secondly, अब steroid at that point of time चलो inflammation कम करेगा, then the new infection will come. The problem which happens long term is आपकी स्किन की क्वालिटी को खराब करेगा. There is something called atrophy of the skin. Skin thin out हो जाएगी. Second thing what it can do is it can cause fungal resistance as well. तो जो organism fungus का था, जिसके लिए एक simple antifungal cream would have been good enough, now we have to go in for tablets, and then the treatment duration by itself will become very long. So the first and foremost thing that you have to do is not self-medicate. Rather than that, आप wait कर लो थोड़ा, you go to a dermatologist, because even if you go to a normal physician also, any other doctor also, that is fine. But definitely do not self-medicate, because if you go to the chemist, वो आपको same cream देने वाला है चाहे आपको कोई भी problem हो. But it's not so easy to eliminate the fungus, because there is something that localized to application आप कर रहे हो, but that same fungus might be there into a bloodstream as well, and complete treatment becomes very important over here. So अगर आप initially ही ये सारी creams से start करते हैं, then the progress of the entire disease takes a longer duration. We have seen a lot of surge in the cases of fungal infection first, कि अब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं फंगल इन्फेक्शन के. सेकंड, वी सी reoccurrence of fungal infection a lot these days, कि एक बार हुआ ठीक हुआ, उसके बाद फिर हो गया, बार बार हो रहा है. पहले एक पार्ट में होता था, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी होने लग गया. What is the reason for that? Because you also mentioned that complete your treatment, that is equally important. Exactly. So as I was saying, तो आपका first time में ही sometimes the fungal infection not completely eliminated. Let's say कि आपका ये cream आपने लगा दिया, and sometimes बहुत initial infection था, इस cream से पूरा ही वो cure हो गया. So उसकी वजह से जो है आपका next 3 to 4 weeks maybe there will not be any infection, but then again it will come back. Along with this, दूसरे causes भी हो सकते हैं. वो हो सकता है somebody in your family might be suffering from the fungal infection, and you are using the shared towels, napkins, and वहीं से वो वाला infection वापस आ रहा है. So as I said, cleaning is most important, not just yourself, but the stuff that you're wearing, your undergarments, your socks, your napkins.
What I tell the patient is ki soak them overnight in Dettol and morning you wash them and then dry them out, show them sunlight. That is the ideal way to clean whatever fungal hyphae is there inside. Along with that, अगर बहुत ही आपके undergarments all are old, you can even throw them away, get new ones. And इसके अलावा what becomes most important is कि आपका अगर फैमिली के अंदर किसी को ये इन्फेक्शन हो रखा है, लेट्स से आपको ये इन्फेक्शन 1 ईयर पहले हुआ था, बट दैट हाइफे और दैट स्पोर माइट स्टिल बी देयर इन योर बॉडी, बिकॉज एज सेड फंगल इज अ कॉमेंसल. ऐसा नहीं है कि किसी की बॉडी में फंगस नहीं उग रहा है. ऑल योर जेनिटल एरियाज, अंडर आर्म, जहाँ पे फंगस वैसे भी रहता है एज अ कॉमेंसल विद अ बॉडी. प्रॉब्लम होता है जब आपका इंटरफेस स्किन का जो है उसके अंदर उसका कॉलोनाइजेशन बढ़ जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट इज व्हेन द इन्फेक्शन स्टार्ट्स टू हैपन. So even if you're taking the right treatment, taking the right duration of treatment up till the last lesion gets resolved, and even after that, up till the point पूरा clearance हो रहा है, becomes very important. What we do is अगर आप सही treatment भी ले रहे हो, for a little bit amount of time you get relief. Itching is the most irritating part. So as soon as itching gets resolved, you tend to leave the infection. And then again it will come back. So and now it might just be a resistant fungus to what it was before. India में आजकल, if I talk especially about the northern belt, the infections that are coming are more resistant in nature to a normal cream जो azole से treat हो जाती थी. Now you have to go in for different kind of compounds, and then again हर चीज का side effect profile होता है. So it's always better if you get the treatment, start early, and complete treatment becomes more important. एंड इन केस अगर रिकरेंसेस आ रहे हैं आपको, देन फर्स्टली चेक आपका खुद का इम्यूनिटी तो नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और समथिंग लाइक दैट, फैमिली में किसी और को है, ऑलवेज इन जनरल कीप अ बेसिक हाइजीन एंड अपना टॉवल्स नैपकिन सेपरेट रखना इज अ गुड आइडिया. बिकॉज इन नाउ द सीजन दैट वी आर कमिंग टू, यहाँ पे मानसून सीजन आने वाला है. नाउ दैट स्वेटिंग बाय इटसेल्फ एवरीबॉडी विल बी हैविंग इट. So if you are suffering, if you are having that itching over there, make sure you're not ignoring it and taking treatment as soon as possible. राइट. वाकई में ये बहुत ही एक कॉमन टेंडेंसी है. हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए डॉक्टर ने हमें 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का मेडिकेशन दिया, हम शुरू का 1 हफ्ता बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बट देन हमें लगता है कि ठीक हो रहा है. अब जो इचिंग था या जो इफेक्टेड एरिया था वो भी सुपरफिशियली हमें लगता है थोड़ा ठीक हो रहा है, हम दवाई लेना छोड़ देते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि रिकरेंस होता है, बार बार होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक ही नहीं होता है. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ले, डॉक्टर को दिखाए, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए, दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसे कंप्लीट करे, और फिर भी अगर बार बार हो रहा है फंगल इन्फेक्शन तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, बहुत जरूरी है. डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन पर हम बात कर रहे हैं और आपने बताया कि अगर किसी और को है तो उससे फंगल इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफी रहते हैं. फिर आपने कहा कि कपड़े अच्छे से धोना, रात भर सोख करके रखना, उसमें धूप दिखाना, ये सब बहुत जरूरी है. बस दिस इज द सीजन वेयर वी हार्डली सी सन. कई बार तो हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं धूप नहीं दिखती है, हमारे कपड़े काफी डैम्प रह जाते हैं, उनमें एक स्मेल भी आती है और एक डैम्पनेस भी होती है, वो कंप्लीटली ड्राई नहीं होते. ऐसे में क्या करें, कोई तरीका है? वेल इन दैट केस आपको बेसिकली उसको आर्टिफिशियल टेक्निक से ड्राई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर वाटर या कंटेंट उसके अंदर बचा है, एंड अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन, देन तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो ग्रो करता ही रहेगा. एटलीस्ट आप अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हो अपने साइड से, बट देन ऑब्वियसली अब सनलाइट तो इज नॉट समथिंग दैट आप प्रिवेंट कर सकते हो, इट्स नॉट इन योर हैंड्स, बट एटलीस्ट आप रेगुलरली ट्राई करो. एंड रेगुलर क्लीनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. What usually people do, especially if I talk about boys and all, they repeat undergarments and all these things tend to happen, which is quite unhygienic. And उसकी वजह से again this problem tends to happen. अगर आप regularly clean कर रहे हो उसको, जैसा कि मैंने बताया, soaking it overnight in Dettol, washing it perfectly, तो उसके बाद just make sure it is dry. Obviously अगर वो wet है and you're still wearing it, or even if it is damp and you're wearing it, again the chances of fungal infection are again quite common. It has to be dried, that is the most important thing. And अपने साइड से अगेन मेक श्योर आप एंटी फंगल पाउडर समथिंग लगा रहे हो, सो दैट दैट स्वेटिंग इज समथिंग जो आपका बॉडी अंदर से निकाल रहा है, उसको हम जितना प्रिवेंट अपने साइड से कर पाएंगे. अगर हो रहा है स्वेटिंग तो उसको जितना हम कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर या किसी चीज से स्टॉप कर सकते हैं, दैट विल बी आइडियल. Okay. Groin area में fungal infection is quite common, doctor, but many a times we have seen patients who come to doctor after a long time because they hesitate to talk about it. वो अपने लोगों से, family से या डॉक्टर से इस बारे में बात करने में या दिखाने में हिचकिचाते हैं.
व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू शो? एक तो कोई भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है डॉक्टर के पास जाना ही है, लेकिन अगर ग्रॉइन एरिया का फंगल इन्फेक्शन है तो क्यों जरूरी है कि हम उसे छुपाए ना, डॉक्टर के पास जरूर जाए? एग्जैक्टली, यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट फीमेल्स इन जनरल, वो ऐसा करेंगे, फैमिली के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, दे विल सेंड देयर हस्बैंड, देयर किड्स, ठीक है वो ठीक हो गए, बट दे विल अगेन हेजिटेट कि अगर हमको वहां पे, तो दे विल बी लिटिल बिट शाय टू शो इट टू समबडी। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटर ऑन फंगस अगर मैं बॉडी में बताऊं, दैट इज देयर इन द ग्रॉइन ओनली। सेकेंडली, अगर यहाँ पे इस सीजन में मैं जैसे बात करूं, अगेन रेजिस्टेंस होने का चांस है अगर आपने कोई क्रीम लगा दिया, बिकॉज अगर आप नहीं जा रहे हो डॉक्टर के पास, ऑब्वियसली आप सेल्फ मेडिकेट तो कर ही रहे हो। द इच इन द ग्रोइन इज समथिंग दैट बिकम्स सो irresistible to stop the feeling of itch कि आप बिल्कुल, it becomes almost impossible for the person, आप throughout the day हो सकता है कि avoid कर लोगे, as soon as you're back what you can do is you'll start itching it, and the epithelium of the groin is called transitional epithelium. So what I mean by that, it's very tender and it is, अगर आप उसको itch कर रहे हो, आप literally first layer of skin को निकाल भी सकते हो। So now what the problem will happen is it's not just a simple fungal infection, अब उसके अंदर secondary bacterial infection हो गया। So वहां पे अगेन उसकी वजह से पेन हो सकता है, उसकी वजह से अब हमको एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी रादर देन एंटी फंगल थेरेपी, क्योंकि वहां पे आपको अब इंटरनल इन्फेक्शन भी हो सकता है उसकी वजह से। सो दीज आर ऑल कॉम्प्लिकेटिंग द थिंग्स। अलॉन्ग विद दैट, ग्रोइन में जस्ट अ सिंपल इच माइट नॉट ऑलवेज बी अ सिंपल फंगल इन्फेक्शन, there's something called intertrigo. So intertrigo is again, it's an dermatitis or an eczema that we call, which is super infected by this fungus. So this is usually found in people जिनको diabetics होते हैं, overweight होते हैं, mobility body का बहुत कम होता है। So specifically these areas में white kind of precipitate बनता है, and because of that वो by itself आप fungus को treat कर लोगे, लेकिन it is an eczematous condition along with it, तो उसको भी treat करना फिर important हो जाता है। सो दैट इज वाई अगर ग्रोइन या कहीं भी ऐसी एरिया में इन्फेक्शन है, सबसे पहले तो डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, गो टू अ डॉक्टर, एंड रेगुलर क्लीनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो सेल्फ मेडिकेट तो बिल्कुल ही नहीं करना है। एज सून एज पॉसिबल प्लीज गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, डोंट फॉल फॉर क्वैक्स, quackery बहुत बड़ी, don't fall for over the counter medication, DIYs, etc. Go to the correct person. Now doctor, when a person comes to you, are there any tests that you normally recommend for the diagnosis, or just by physical investigation you're sure कि हाँ ये fungal infection है, इतना फैला है? वेल अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, तो KOH माउंट हम करते हैं, एंड वहां से वी आर एबल टू सी द फंगल हाइफे इन द माइक्रोस्कोप। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर बात करूं तो इट इज मोर क्लिनिकल, बट यस व्हेन वी वर लर्निंग, व्हेन वी इन अ गवर्नमेंट सेटअप, फिर तो इट बिकम्स वेरी एसेंशियल, बिकॉज लॉट ऑफ डिफरेंट कंडीशंस लुक लाइक फंगस एज वेल। देयर लॉट, जैसे फंगस जिसको हम टिपिकली एक सर्कुलर रैश बोलते हैं, there are more than 20-30 diseases that look very similar to that, and especially because some cream would have been applied over there, तो morphology भी change हो जाता है, that changes the diagnosis sometimes। तो इसीलिए वहां पे इन जनरल जो होता है, इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप KOH माउंट करो, यू सी इट इनसाइड द माइक्रोस्कोप कि क्या कॉन्सेप्टिव ऑर्गेनिज्म है, एंड द अदर ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे एनी रेजिस्टेंस है, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट आउट आल्सो, अगर आप कल्चर करा रहे हो उसका। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो हम क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते हैं एज डर्मेटोलॉजिस्ट, बट यस इट इज ऑलवेज बेटर अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंड देन यू गेट द प्रॉपर डायग्नोसिस, गेट द एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज देयर, और ट्रीटमेंट भी आपका जो है विल बी मोर कस्टमाइज्ड टुवर्ड्स योर इन्फेक्शन। राइट, जैसे आपने कहा था कि 90% पेशेंट्स तो ऐसे आते हैं जो बहुत कुछ करके आते हैं, अभी आपने मेंशन भी किया कि उससे वो चीजें काफी बदल जाती है, तो उसमें तो फिर टेस्ट करना ही पड़ता होगा डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, इन दैट केस अगर यहाँ पे आ रहा है, देन यू नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ चांस, बिकॉज अगर वहां पे इफ यू मिस आउट ऑन समथिंग एज सिंपल एज अ फंगल इन्फेक्शन, तो इट डजंट इवन लुक नाइस दैट वे। तो आपको ट्रीटमेंट से पहले यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, एंड ट्रीटमेंट को भी फिर आपका मॉडिफाई हो जाता है थोड़ा, इफ इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशन, तो आपका थेरेपी एक टॉपिकल क्रीम से ज्यादा एक कैप्सूल या एक ओरल टैबलेट फॉर्म में जो है ज्यादा रिक्वायर्ड है। फेयर इनफ। डॉक्टर, क्योंकि हम फंगल इन्फेक्शन पर बात कर रहे हैं और लगातार ढेर सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उन सवालों को लेने से पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो एक व्यक्ति से जिसे फंगल इन्फेक्शन है, दूसरे व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, क्या एक बॉडी पार्ट से भी फंगल इन्फेक्शन दूसरे बॉडी पार्ट पे ही पेशेंट के हो सकता है? उसके लिए क्या सावधानी बरतनी जरूरी है?
सी अगर आपके फैमिली में किसी एक पर्सन को है तो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट तो चलो पॉसिबिलिटी है ही, इट्स मोस्टली थ्रू फोमाइट्स। तो फोमाइट्स में आपके नैपकिन, टॉवल्स, यूजुअली जो कॉमन स्टफ हम यूज करते हैं, वहां से आने का चांस इसमें ज्यादा रहता है। एंड यस, अगर फैमिली में किसी को होता है एंड इफ यू सी दैट मोर देन वन पर्सन इन द फैमिली इज हैविंग फंगल इन्फेक्शन, देन प्रोफाइलैक्टिकली डेफिनेटली यू शुड टेल कि अगर रिक्वायरमेंट है, किसी को भी इच हो रहा है, देन डू नॉट वेट, बिकॉज देयर इज अ चांस कि वो फैमिलीज के अंदर बहुत easily spread कर जाता है। And if we talk about, if we in the person in the family, mostly the old age people जिनका mobility कम है, जिनका कहीं ना कहीं blood sugar levels में थोड़ा सा derangement है, the chances for them to get fungal infections becomes even more। एंड देन फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जो है उनके लिए हम ज्यादा टैबलेट्स और वो भी नहीं दे सकते हैं। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि जितना जल्दी फैमिली मेंबर में किसी को भी हो रहा है, इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल अवॉइड कर लो एक दूसरे के साथ रहना, स्टे फार अवे एनीथिंग, बट यस अपना बेसिक हाइजीन मेंटेन करें, अपना टॉवल्स नैपकिन सेपरेट रखें एंड अपना बेसिक हाइजीन को अगर लॉन्ग टर्म में आप करेंगे देन इट्स इजीली मैनेजेबल। ओके। जब डायग्नोसिस हो जाता है फंगल इन्फेक्शन का डॉक्टर, इस वक्त हम स्किन फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है और लगभग कितना समय लगता है ठीक होने में? So, if we talk about a simple fungal infection, जहाँ probably just 1 or 2 patches आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, तो in that case just a topical antifungal will be good enough. So topical antifungals में you have your azole based antifungals, your iconazole, cetoconazole, and just a simple aliconazole. But nowadays again azole से resistance start हो गया है, so there are different kind of different creams that we recommend in that case। But then sometimes just a topical treatment is not enough, because usually simple fungal infections आजकल आने बहुत कम हो गए हैं। It does come as a widespread infection, resistant infections आते हैं। So in that case you have to go in for some kind of a oral therapy in terms of capsules। So आपके capsules में you have itraconazole, fluconazole, again azoles dominate the entire treatment protocol, because सबसे ज्यादा organisms जो fungal होते हैं उनको target azoles easily करते हैं। But again, as I said, azole से resistance start हो गया है, then you might have to go for some allylamines like your terbinafine। So a combination of treatment is important, but yes, the second part that you talked about is the duration of treatment। So duration of treatment becomes very critical। You might be taking the perfect treatment for a week or 10 days, but आपका fungal infection ही इतना ज़्यादा है कि वो उस टाइम के लिए कम हो गया, but then again recurrence आ जाएगा। The new organism might be resistant to the previous drugs that you are giving to the person। So up till unless the last patch that you are having is resolved, ऐसे इवन उसके भी 1 or 2 weeks बाद अगर ये रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन है, देन अप्लाई द क्रीम्स दैट इज गिवन टू बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। क्योंकि हम यहाँ पे चांस नहीं ले सकते हैं कि फिर से वो फंगल इन्फेक्शन आ जाए। As soon as now you can see the monsoon season, majority of the patients जो अब मेरे पास आएंगे will be the same fungal infection treated patients जो लास्ट ईयर completely treat हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर वो रिटेंशन था फंगस का, जो जैसे ही सीजन आया अगेन वो ज्यादा हो गया। एंड फिर वो ज्यादा हो गया, नाउ आई कैन नॉट स्टार्ट देम ऑन द सेम ट्रीटमेंट जो मैंने लास्ट ईयर लिखा था, बिकॉज देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस टू द सेम ऑर्गेनिज्म। सो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन को मैथमेटिकली करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लीजन्स एंड द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। बट इन जनरल अगर मैं बताऊं, सो मिनिमम 1 to 2 weeks का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो रहता ही है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो हम ओरल एंटीफंगल पे स्टार्ट करेंगे, बट टॉपिकल एंटीफंगल्स practically speaking what I see, sometimes even a month tend to cross in that way, because somebody else might be having in the family, as we just talked about। So kabhi kabar to month ke zyada bhi ho jata hai, but again the duration of treatment is not important। Most important thing over here is ki complete cure hona chahiye। राइट, बिल्कुल। डॉक्टर, नेल फंगल इन्फेक्शन पर भी हम बात करना चाहेंगे। वो कौन लोग हैं जो रिस्क पर होते हैं नेल फंगल इन्फेक्शन के? फिर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? Yes, so this is again a very critical point, because आपका normal fungal infection तो still आप tablet cream से resolve कर लोगे। Nail is an area जहाँ पे अगर fungal hyphae आ गया, it is not going to be a very simple task
बहुत ही कोई एक क्रीम या कोई उससे नहीं जाने वाला. इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर, एज यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट काफी ज्यादा हो जाता है. अगर इफ आई टॉक अबाउट द फंगल इन्फेक्शन इन योर टो नेल्स, समटाइम्स 6 मंथ से भी ज्यादा लग जाते हैं पेशेंट को. सो इन दैट केस हम पल्स थेरेपी पे स्टार्ट करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट वी गिव अ पेशेंट सम नेल लैकर्स टू अप्लाई. And despite doing all of these things, still sometimes the treatment response is not very good, because जब पेशेंट ने हमारे पास प्रेजेंट किया तब तक नेल के अंदर का फंगस इतना बढ़ चुका है कि इट कॉजेज समथिंग कॉल्ड नेल डिस्ट्रोफी, कि द स्ट्रक्चर ऑफ नेल अंदर से ही खराब हो गया है. देन समटाइम्स यू इवन हैव टू काउंसिल द पेशेंट कि आपका इन्फेक्शन तो हम खत्म कर लेंगे, लेकिन क्या नेल उसी सेम स्ट्रक्चर से वापस आएगा? यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट. समटाइम्स आपका जो क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ नेल इज सो हार्ड कि वहां पर नीचे जाएगा ही नहीं अप टू द अप्रोप्रिएट डेप्थ जहां पे फंगल हाइफे प्रेजेंट है. So then there are different other things we have to do, sometimes lasers and different stuff just to debride that and avulse that part of the nail जहां के अंदर infection आ गया है. So coming to the prevention part of it, yes, it is very important. सबसे पहले अगर हम ये देखें कहाँ ये वाले infections होते हैं, usually foot वाले infections what we've seen is swimming pools and areas जहाँ पे water ज़्यादा रहता है and people work over there, वहाँ से foot में, and then again foot में अगर आ गए the same thing can go into your toenails as well. And if you are in contact with a lot of vegetative materials sometimes, अगर किसी का प्रोफेशन ऐसा है, so again वहाँ से भी आपको ये इन्फेक्शन आ सकता है. So as I tell the people, जो भी ये वेजिटेबल या कुछ भी आप काट रहे हैं, it is better अगर आप some kind of gloves or something like that आप यूज करो, because you might be thinking कि वेजिटेबल मैटर से कहाँ से आ सकता है, but fungus grows as a saprophyte, dead decaying particles जो होते हैं even in your vegetables and all से वापस आ सकता है. Then you use your swimming pools, you go over there, वहां पे the amount of cleaning that nowadays you cannot never be very sure about it. तो अगर वहां से आपको इन्फेक्शन आ रहा है, और दूसरा चीज होता है पीपल जिनका वर्क ऐसा है वेयर यू हैव टू वेयर योर शूज एंड सॉक्स फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं वहां पे आ जाता है यू गेट टाइट फिटिंग क्लोथ्स. समटाइम पीपल हैव दैट काइंड ऑफ जॉब, स्पेशली अगर आप मिलिट्री या कुछ ऐसा देखते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ आवर्स यू हैव टू बी स्टैंडिंग ओवर देयर. सो ओवर देयर क्लीनिंग योर फुटवेयर, नॉट जस्ट योर फुटवेयर, योर सॉक्स आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई करो जितना हो सके लूज फिटिंग आप अपने शूज पहने. दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई सेड, अगर फंगल इन्फेक्शन नेल में आ जाता है, तो अगर इफ आई टॉक अबाउट सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस टू गेट इट, बिकॉज आपका ट्रीटमेंट तो एनीवे इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बट द स्ट्रक्चर ऑफ नेल वंस इट्स गेट डैमेज, वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट बैक. कई बार मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराने जाते हैं, उसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डिवाइस है, उनको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते, उससे भी होता है डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज अगेन वन मोर थिंग. अगर आप जा रहे हैं कोई भी स्किन के आप ये पेडिक्योर या मैनिक्योर कराते हैं, यू गेट ऑनिकोमाइकोसिस. वहां से अब हो सकता है कि आपने लॉट ऑफ टाइम पीपल कम टू अस लाइक हमने तो अभी कराया नहीं, 6 मंथ्स पहले कराया था, 1 ईयर पहले कराया था, कैसे दोबारा वहां से आ सकता है. बट द थिंग इज कि वहां पे कितना क्लेनलीनेस वो फॉलो कर रहे हैं, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट इट. एंड एक बार वो फंगस इनोकुलेट हो गया नेल के अंदर, वो स्लोली ग्रो करता रहेगा. इट इज नॉट कि विद इन 1 or 2 वीक, जैसे इफ यू टॉकिंग अबाउट जेनिटल एरिया, तो वहां पे फंगस ग्रो करेगा, आपको इचिंग शुरू हो जाएगा 1 or 2 वीक्स के अंदर. नेल का अगर फंगस हो रहा है, इट इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस, एंड बाय द टाइम आप रियलाइज करते हो, बिकॉज नेल इज नॉट समथिंग जो इच करने लगेगा सडनली, थोड़ा सा डिस्कलरेशन आएगा, यू विल फील लाइक हाँ हो सकता है चोट लग गया, यू माइट अवॉइड इट इन जनरल. एंड बाय द टाइम यू एक्चुअली रीच द डॉक्टर, आप देख रहे हो एक नेल से 5 नेल 6 नेल्स तक स्प्रेड कर गया है. स्पेशली अगर मैं ग्रेड टो की बात करूं, वहां पे उसने इतना ज्यादा इन्फेक्ट कर लिया कि डिस्ट्रोफी शुरू हो चुका है. सो अगेन दीज थिंग्स जो है हम इग्नोर इजीली कर लेते हैं. अपना बेसिक हाइजीन को मेंटेन करना बिकम्स इंपॉर्टेंट. यस आई गेट इट, अगर आपका प्रोफेशन या कुछ ऐसा है कि वेयर यू हैव टू गेट योरसेल्फ मैनिक्योर्ड एंड पेडिक्योर्ड, इट इज ऑलवेज बेटर कि अपने साइड से आप अपना क्लेनलीनेस को मेंटेन करो. जस्ट हैविंग, अगर आप शूज पहन रहे हैं, थोड़ा सा एक एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर लगा दिया एंड देन यू वेयर योर सॉक्स एंड शूज. उसके अलावा जस्ट व्हेन यू आर क्लीनिंग योरसेल्फ, तो एक एंटी फंगल सोप या एंटी फंगल बॉडी वॉश आपके वॉशरूम में होना चाहिए. सो इफ यू आर क्लीनिंग दैट एरिया, एटलीस्ट जो बेसिक टॉप लेयर ऑफ फंगस है उसको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं.
तो फंगल कॉलोनाइजेशन अगर इंक्रीज नहीं होगा, सो होपफुली द इन्फेक्शन प्रोटोकॉल जितना वो हो रहा है उतनी स्पीड पे नहीं हो पाएगा। एंड यस, एज सुन एज यू गेट एनी डिस्कलरेशन इन योर नेल, मेक श्योर नॉट अवॉइडिंग इट वेरी इजीली। समटाइम्स लगता है कि वो चोट की वजह से, या हमें लगता है कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, कैल्शियम है, किसी चीज का कमी है, बट इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। स्पेसिफिकली अगर आपको लग रहा है कि एक के बजाय दूसरे नेल में भी अभी स्टार्ट हो गया, देन डेफिनेटली सीक ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। Fair enough. And doctor, we would also like to talk about fungal infection on the scalp, if you can shed some more light on that. बिल्कुल, तो फंगल इन्फेक्शंस ऑन योर स्कैल्प, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर समथिंग कॉल्ड टीनिया कैपिटस। सो टीनिया कैपिटस जो होता है, इट इज, एज आई सेड, इट इज मोर कॉमन इन स्कूल ग्रोइंग चिल्ड्रन। सो वहाँ पे स्कूल में किसी एक बच्चे को है, ऑब्वियसली यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, वहाँ से आपको ये लग सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं, हम उसे कीरियन फेवस बोलते हैं। समटाइम जस्ट एज अ दाना आ सकता है, और समटाइम वेरी थिक स्केली प्लाक्स की तरह वो आ सकता है। बट अगेन, आपका ट्रीटमेंट अपने साइड से तो करना है, बट डेफिनेटली इन्फॉर्म whosoever is there in the school कि वहाँ पे भी this infection has started, because अगर वो एक में है तो again it spreads very easily among children, because कहीं ना कहीं first 5 to 10 years of age your immunity is not that good, तो एक से दूसरे में वो infection लगने का चांस बहुत ज्यादा है। So if I talk about specifically the dermatophytosis, then yes, tinea capitis जो है वो एक common infection है। But इसके अलावा in general आपका जो होता है seborrheic dermatitis, that is caused by Malassezia furfur, या जिसको common terms में हम dandruff बोलते हैं, that is just a initial part जो white scales आपको दिखते हैं। But वहाँ पे भी जब fungal colonization बढ़ जाता है, then again thick adherent scales बनने लग जाते हैं। Sometimes अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल है तो दे समथिंग कॉल्ड क्रैडल कैप अपीयरेंस आपका हो सकता है। आपका देन अमाउंट बच्चों में अगेन ये वाला इशू ज्यादा रहता है। देन पीपल हु हैव अगेन दिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, तो वहाँ पे द थिक स्केलिंग, और जो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है यहाँ पे, नॉट जस्ट एन एंटी फंगल, देन एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, लोशंस, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट योर फंगल इन्फेक्शन, हम कहते हैं कि मानसून सीजन में बढ़ता है, बिकॉज देयर इज अ सेबेशियस ग्लैंड, वहां से सीबम निकलता है, आपका स्वेटिंग बढ़ता है, मॉइस्चर बढ़ता है, यस दैट डज हैपन। बट इफ आई टॉक अबाउट नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट की मैं बात करूं, देन इवन इन योर विंटर्स व्हाट हैपेंस इज द वेदर बिकम्स वेरी ड्राई, एंड लोगों को समटाइम्स एक वहां पे स्पॉट ऑफ डैंड्रफ बढ़ने लग जाता है। And because of the fact that the weather is very dry, so again the sebaceous gland, it tends to increase more sebum production, उसकी वजह से सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने लगता है। सो अब ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल डैंड्रफ, वो फिर बढ़ेगा, इट माइट इन्फेक्ट योर बियर्ड, योर चेस्ट, योर बैक, योर शोल्डर्स, again your genital areas can also be infected, so directly and indirectly दोनों साइड में स्कैल्प आपका इन्वॉल्व हो सकता है। So having a good hygiene, अपना regularly shampoo करना becomes important. If you're applying a lot of hair products or something like that, make sure अगर anti fungal shampoo से भी नहीं कर रहे हो, but clean करना उसको बहुत important है। Because any kind of product that you're using, whether it's a pomade, clay, spray, कहीं ना कहीं आपके scalp को dry out कर रहा है। Scalp को dry out करेगा, then again allergy start हो सकता है, वो बढ़ने लगेगा, देन अगेन एज आई सेड फंगल इज अ कॉमेंसल, वहां पे भी फिर वो अपना जो है ग्रोथ बढ़ाने लग जाएगा, एंड देन यू लैंड अप विद समथिंग कॉल्ड रेजिस्टेंट सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिक कैपिटल हमको उसको कहते हैं, बिकॉज वो इतना टाइम से पेशेंट को चल रहा है, यू टेंड टू इच द स्कैल्प अगेन एंड अगेन, फिर वो स्कैल्प बाय इटसेल्फ भी सेंसिटिव हो जाता है। अगर इन्फेक्शन नहीं भी है तो एक वो इचिंग परसिस्ट ही करता रहता है, फिर देन वी हैव टू मूव द ट्रीटमेंट टू समथिंग कॉल्ड स्टीरॉइड, देन दैट इज अगेन नॉट वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर हेयर एज वेल। सो जितना जल्दी हो सके, आपको स्लाइट इचिंग भी हो रहा है स्कैल्प के अंदर, कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल, सो दैट योर हेयर हेल्थ इज आल्सो मेंटेन्ड इन द लॉन्ग। डॉक्टर, हमारी सोसाइटी में एक और टेंडेंसी है, खासकर स्कैल्प के साथ, अगर किसी भी तरह की इचिंग हो रही है या डैंड्रफ जैसा ड्राईनेस जैसा लग रहा है, देन वी वुड लव टू अप्लाई ऑयल, और उसे हम घंटों घंटों अपने स्कैल्प पे रखते हैं। तो और डैंड्रफ या ऐसा कुछ है तो हमको तो लगता है कि तेल या इसी से हो पाएगा ये ठीक। अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो क्या वो जो तेल हम सर पे लगा रहे हैं वो अच्छा है कि खराब है, बुरा है? बिल्कुल, एज यू सेड, एक बहुत ही टची टॉपिक हो जाता है कि एवरीबॉडी इज सो अच्छा। कंसर्न कि अगर आप किसी को बोल दो कि तेल लगाना इज नॉट गुड, दे माइट जस्ट टेक दैट ऑफ एन ऑफेंस। आई स्टार्टेड मोस्टली साउथ इंडिया, वहां पे तो यू हैव टू अप्लाई ऑयल, कोकोनट ऑयल इज समथिंग दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ एवरीडे रूटीन। So, as I said, oil by itself, it's not a bad thing, but again, what is it achieving over here is what is important.
अगर हम बाल के लश्चर और शाइन की बात करें, इजीली कोम करने में आपको हेल्प कर रहा है, यस इट्स अ गुड थिंग। आप अपना हेयर को ऑयल करो, लाइक वंस अ वीक आप अपना, जिसको हम बोलते हैं चंपी करो, या जो भी आप अपना बालों के अंदर डाल रहे हैं, इट इज गुड, आपके बालों में लश्चर और शाइन रहेगा। बट मोर देन दैट आई रियली डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। along with that, as I said, अगर आप बोल रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, then definitely, then तो you are just adding more stuff to the soil, आप उसको और प्रीडिस्पोज कर रहे हो कि जो इन्फेक्शन है वो जल्दी बढ़ जाए। सो अगर इफ यू हैव टू अप्लाई ऑयल एंड इट इज लाइक कि नहीं ऑयल तो मेरे को करना ही है, आई डोंट फील नाइस मैं विदाउट अप्लाइंग ऑयल, then take a little bit of oil, just 1 or 2 drops, and ends of your hair पे लगाओ। बट अगर आप स्कैल्प के अंदर उसको लगा रहे हो, then again it will cause some kind of an issue in the long run. So there are few anti dandruff creams that you can apply, वो आपको थोड़ा लश्चर भी दे देगा एंड थ्रू आउट द डे आपका जो है इस स्केल्स को अक्यूमुलेट होने से बचा के रखेगा। अगर हेयर लॉस प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ पीपल एसोसिएट हेयर ऑयल विद हेयर ग्रोथ एज वेल, सो देन हेयर सीरम्स होते हैं विच आर मोर थिनर इन कंसिस्टेंसी। आपका जो शैम्पू आप यूज कर रहे हो दैट शुड आल्सो बी अप्रोप्रिएट। आपका अगर एंटी फंगल शैम्पू आप यूज कर रहे हैं, समटाइम दैट आल्सो टेंड्स टू ड्राई अप द हेयर। तो अगर हम पेशेंट को डाल रहे हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, तो वो ये बोलते हैं कि आपका शैम्पू ने हमारे बाल को इतना ड्राई कर लिया कि अब हमको तो ऑयलिंग करनी पड़ेगी। सो अगेन इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग जस्ट टू कन्विंस द पेशेंट दैट ऑयल इज नॉट समथिंग विच इज हार्मफुल फॉर यू। बट यस, अगर आपको एक इन्फेक्शन है, देन यू जस्ट एडिंग ऑन टू द इंटायर कॉलोनाइजेशन ऑफ द फंगस। राइट। बहुत अच्छी बातचीत अभी तक हुई स्किन फंगल इन्फेक्शन को लेकर, हेयर एंड स्कैल्प एंड नील फंगल इन्फेक्शन को लेकर, और ढेर सारे सवाल हैं। कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ। शशि सोनी हमारी व्यूअर पूछ रही है, कैन शेयरिंग मेकअप प्रोडक्ट कॉज फंगल इन्फेक्शन? यस, अगेन आपका मेकअप प्रोडक्ट से ज्यादा आप जो डिवाइसेस जिनसे आप यूज कर रहे हो, ब्रशेस आपके जो हो गए, वहां पे अगेन आपका यूज, आपका जब आप उसको फेस के ऊपर लगा रहे हो, दैट इज समथिंग दैट नाउडेज ये वाले प्रॉब्लम ज्यादा आने लग गए हैं। पीपल जो एक एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री में होते हैं, जहाँ पे कि आपको रेगुलर मेकअप करते रहना है, डे में 2-3 टाइम्स करना है। सो व्हाट यू टेंड टू डू इज, जो भी आपके 2-3 फ्रेंड्स और ऑल, यू जस्ट कंबाइन, आप कहते हो कि हाँ इसको ही हम यूज कर लेंगे और आई विल स्टार्ट यूजिंग द सेम थिंग। So if you are having such kind of an issue, at least basic cleaning कर लेना चाहिए। आप सैनिटाइजर को थोड़ा सा ले लो, या कोई भी क्लीनिंग वेट वाइप से उस चीज को क्लीन करो। एटलीस्ट जब आप उसको लगा रहे हैं तब तो आप ये वाली चीजों का ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, कलरिंग प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स मेकअप में, तो देन अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू टेंड टू डू। सो आइडियली इट इज बेटर कि आप अवॉइड ही करो अपना सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को, एंड इवन जनरली नॉट जस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स, आप अगर शेव या ट्रिम कर रहे हैं, उस एरिया को भी अपना क्लीन करना। व्हेनेवर यू यूजिंग एनी एक्सटर्नल डिवाइस ऑन टू योर स्किन, मेक श्योर कि वो क्लीन है बिफोर यू आर यूजिंग इट, बिकॉज यू नेवर नो कि किसने वो चीज यूज किया, उनके अंदर कितना इन्फेस्टेशन था फंगस का, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजीली प्रिवेंटेबल। सो इट इज ऑलवेज एडवाइस कि आप ना ही शेयर करो प्रोडक्ट, बट अगर कर रहे हैं देन क्लीनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड एक और सवाल है, आर वाइट पैचेस ऑन आवर टंग अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन? Yes, it can be. I mean, it is not very easy to just say कि अगर white patch है तो वो सिर्फ fungal infection ही होगा. There might be some other causes to it. But if we are restricting the discussion to fungal infection, then there's something called a oral thrush or an oral candidiasis. So there are different kind of fungus जो अभी तक हम ज्यादातर dermatophytosis की बात कर रहे थे, and sometimes there are different kind of species called yeast और candida जिसको हम बोलते हैं. So ये candidiasis जो होता है, it tends to infect some certain areas of a body. अगर मैं आपका women की बात करूं, then there is something called vulvovaginal candidiasis. तो वहां पे वाइट डिस्चार्ज होता है, अगेन समथिंग दैट वुमेन टेंड टू अवॉइड, और उस वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाता है। बट रिस्ट्रिक्टिंग टू डिस्कशन टू द फेस, तो अगेन आपका जो ओरल कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश हम उसको बोलते हैं, दैट कैन कॉज वाइट पैचेस, आपका प्लाक्स बन सकते हैं ऑन योर टंग, योर इवन योर गम, समटाइम एक स्टिकी वाइट एडहेरेंट काइंड ऑफ थिंग माइट बी देयर प्रेजेंट। तो अगर वो आपको फील हो रहा है कि आ रहा है, स्पेसिफिकली अगर व्हेन यू आर क्लीनिंग एंड ब्रशिंग योर टीथ आपको फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग स्टिकी इनसाइड एंड एक वाइट एडहेरेंट पैच है जो नहीं निकल रहा है, यस यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम कैंडिडियासिस।
So again, in that case, dental hygiene becomes very important. Not just brushing your teeth, your tongue also has to be clean, because वहाँ पे सबसे easily infest हो जाता है. tongue आपका जो होता है, again is a major source जहाँ पे ये yeast या candida जो है colonize करता है, वहाँ पे patches बनाने लग जाता है. So tongue cleaning becomes even more important. And along with that, अगर आपको लग रहा है कि despite doing all these things नहीं जा रहा है वो, then do consult a dermatologist as soon as possible, because these kind of infection, again, it is not just a simple cream or something you'll be applying. In end of the day आप oral therapy पे जाओगे, long term oral therapy के अपने side effects होंगे. So जितना जल्दी इन conditions को हम cure कर पाएं will be easier for us. And again, if you're suffering from something like candidiasis, also get your immune status checked. आप अपना क्या बोलते हैं blood sugar levels को check करो, or any other thing that you're suffering from, get yourself treated, because जहाँ immunity कम होगा, these two areas, yeast is something that grows very easily, and then it takes a little bit more time than a normal fungal infection to cure as well. Right. Dr. Jatin Sadhwa, before we wind up the whole session, any take home message for our viewers? Well, yes, the most important part is now कि जो take home message की आप बात कर रहे हैं, because the monsoon season has just started, so people will be having reactivation of fungus, new infections might be coming as well. So जितना भी today we have talked, I hope we had a good discussion. Anybody who is listening to it, better start maintaining a hygiene. अभी तक भी अगर आपने नहीं किया, it's never too late to start. At least you can start with taking a shower every day. अपने undergarments को, I personally say कि clean yourself, don't give it to the laundry. You never know, आपके वहाँ से वो best laundry service हो सकती है, लेकिन infection वहाँ से कहीं ना कहीं आता ही है. Specifically, if you are going to places जैसे swimming pools and stuff like that, clean your body, specifically your toes well. उसके बाद आप अगर यू स्टेइंग इन प्लेसेस जहाँ ग्रुप्स ऑफ पीपल हो, हॉस्टल्स में आप रहते हो, अगेन योर हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैव टू बी टू द utmost, because now we are seeing resistant cases of these fungal infections. So we do not want again कि आप यहाँ पे आओ dermatologist के पास and then we have to start you on a treatment that is taking longer to cure. And the last thing that I again will mention is, do not self medicate, because that is the worst thing that you can do to your body even in the long term. So अगर एक बार हो गया है, मे बी ट्रीटमेंट आपका सही हो जाएगा, you might get cured, but in the long term the quality of skin as you age will definitely be very bad. Completely agree to that. So please take good care of yourself. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनके पास जरूर जाइए. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर Jatin Sadhwa. It was wonderful talking to you. Thank you for taking out time for this session and making this session so informative. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a great day ahead. Goodbye.